Hi guys, welcome to Insight SSB YouTube channel. Today we are here with the part 2 of FCAT 1 2021 current affairs series. Now letting you know that a lot of question doesn't show up when it comes to the current affairs section of FCAT, but a lot of questions come from the static area when it comes to the GK portion of FCAT. So what we'll be doing is that we'll be dealing current affairs along with the static portion so that you get a lot of benefit out of the videos that are of current affairs series. Also, I'm planning to get certain static videos for you that will be really helpful. So stay tuned for upcoming days because the videos of Insight SSB will be very beneficial for your CAT examination. Now starting with the first current affair, and that is who has been awarded with BBC Sports Personality of the Year 2020. The answer for the same is D, Lewis Hamilton. As you know that he had been an amazing sports player when it comes to 2020 year. He had won so many Grand Prix. You can just check it out. Turkish Grand Prix, Portuguese Grand Prix, British Grand Prix. He has almost excelled in all the Grand Prix, and that is why he had been awarded with the BBC Sports Personality of the Year 2020. Moving to the next one. Who won the US Open Women's Tennis Tournament? So the answer for the same is A, Naomi Osaka. She is from Japan. She won this match against Victoria Azarenka and she is from Belarus. Talking about Naomi Osaka, this is her third Grand Slam title. Okay, so it is a very big thing. And she has won 2018 US Open along with 2019 Australian Open and finally US Open in 2020 as well. So this is her third Grand Slam and she becomes the first Asian player to win 3 Grand Slams. Okay, so there has not been any Asian player जिसने एक साथ 3 Grand Slam जीते हों. So she is the first Asian player to win 3 ग्रैंड स्लैम. ओके, आप ये बात याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसे. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हु वन द यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस टेनिस टूर्नामेंट, द विनर हैड बीन डोमिनिक थाइम एंड ही हैज वन इट अगेंस्ट अलेक्जेंडर ज़्वेरेव. Now, one thing that you have to tell is that Dominic Thiem कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, ठीक है, एंड सेम यू हैव टू टॉक अबाउट अलेक्जेंडर ऑल्सो कि वो कौन सी कंट्री से हैं, ठीक है. ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे. ये मैंने ऑल्सो आपसे CDS वाली जो करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज थी स्पोर्ट्स रिलेटेड उसमें भी डिस्कस किया है, ठीक है. सो प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द आंसर फॉर द सेम. Next information, and a very important information because anything when happens for the first time it gets very important for FCAT and specifically if there is any Indian women into it. Okay, so Aishwarya Sridhar, she becomes the first Indian woman जिन्होंने Wildlife Photographer of the Year award जीता है and she has won this award in the category of Behavior of Invertebrates. Okay, so category क्या है? Behavior of Invertebrates category. When we talk about the photograph, the title for the same was Lights of Passion. ठीक है, so photograph को title क्या दिया गया है? Lights of Passion. और ये जो award है वो organize किया जाता है by National History Museum. This is the photograph for which she has been awarded and she is Aishwarya Sridhar. ठीक है, आप याद रखेंगे, a very important information. Moving to the next one, who has become the first Indian to score 50 goals in Indian Super League? तो कौन है वो फर्स्ट इंडियन? द आंसर फॉर द सेम इज डी, सुनील छेत्री. एज यू नो कि ये हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, ठीक है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हिज 50 गोल्स, तो 42 इनके डायरेक्ट गोल्स हैं और 8 गोल्स जो हैं इनके असिस्टेड गोल्स हैं, ठीक है. तो आपको ये बात याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही बिकम्स द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने 50 गोल स्कोर किए हैं इंडियन सुपर लीग में. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विच इंडियन बैट्समैन has become the first player in the world to hit 100 sixes in all formats against Australia. कोई एक पर्टिकुलर टाइप का मैच नहीं है, सारे फॉर्मेट्स, ठीक है, जो भी फॉर्मेट्स होते हैं क्रिकेट में, जितने भी टाइप ऑफ गेम्स होते हैं उसकी बात की जा रही है. तो कौन है वो प्लेयर जिन्होंने 100 सिक्सेस हिट किए हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? द आंसर फॉर द सेम इज बी, रोहित शर्मा.
Moving to the next one, who has won ICC Men's T20 Player of the Decade Award? So ICC Men's T20 Player of Decade Award जाता है आपके अफगानिस्तान के प्लेयर हैं and he is actually a leg spinner. The name of the person is Rashid Khan. So answer is A, Rashid Khan. Coming to the next and very very important question, that is, who has become the first women umpire to officiate men's test match? Now एम्पायर जो हैं विमेन एक पहले भी आई हैं, आप उसका आंसर देंगे मुझे दैट फर्स्ट विमेन एम्पायर कौन रही हैं, ठीक है, दैट इज देयर. अब अगर हम टेस्ट मैच की बात करते हैं, मेंस टेस्ट मैच की, उसकी बात होती है तो फर्स्ट विमेन एम्पायर कौन है? द आंसर फॉर द सेम इज क्लेयर पोलोसैक. तो ये एक ऑस्ट्रेलियन एम्पायर हैं और ये फर्स्ट वुमेन मैच ऑफिशियल हैं किसी भी मेंस टेस्ट मैच की. तो आप याद रखेंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसे भी. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ऋषभ पंत जो हैं वो फर्स्ट इंडियन बैट्समैन बन जाते हैं जिन्होंने 1000 रन स्कोर किए हैं, लेकिन कितनी इनिंग्स में? दैट इज द क्वेश्चन. कितनी इनिंग्स में स्कोर किए उन्होंने? द आंसर फॉर द सेम इज डी, दैट इज 27. तो ऋषभ पंत जो है वो फर्स्ट इंडियन बैट्समैन बने हैं जिन्होंने 27 इनिंग्स के अंदर 1000 रन्स बनाए हैं, ठीक है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें कोई भी रिकॉर्ड अगर बनाया है किसी ने, मतलब स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट क्रिकेट, ठीक है, तो रिकॉर्ड से रिलेटेड या फिर किसी ने रिकॉर्ड ब्रेक किया, जैसे अभी रिसेंटली विराट कोहली ने जो ब्रेक किया था रिकॉर्ड, ठीक है, रिलेटेड टू जो सचिन तेंदुलकर ने 12,000 रन्स बनाए हुए हैं, तो उसका रिकॉर्ड जो ब्रेक किया था विराट कोहली ने, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, वी नीड टू गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. Now talking about Nobel Prizes 2020, so the first thing that we need to know is that there was a person named as Alfred Nobel, and there was he was basically a Swedish chemist, and it was his last will, or we can say it was his testament, that he want to give his share of income, whatever money he had, he want to give that share to the prizes of certain things. That is, first was physics, second thing was your chemistry, third was, you can call it as physiology, or you can talk about it as medicine, ठीक है, and the fourth one was your literature, ठीक है, and the fifth one was your peace. So इनके लिए उन्होंने बोला था that whatever his income is, उसका जो शेयर है every year, उसके लिए जो awards हैं वो दिए जाएं, ठीक है. So these were named as Nobel Prizes. Okay, so अगर हम first time बात करें तो it was first time awarded in 1901. Okay, and if we talk about the 6th prize edition, that is your economic sciences, ठीक है, this was added in 1968. This is what you need to remember. Okay, तो ये जो basic information है नोबेल प्राइजेस के बारे में. Now we'll talk about the Nobel Prizes जो 2020 में दिए गए हैं. Now before moving further, we need to know दैट जो ये प्राइजेस हैं वो कौन देता है, ठीक है. आफ्टर दैट वील डिस्कस कि नोबेल प्राइज मिले किसे 2020 में. सो मूविंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस. ये जो है इट गिव्स इट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड योर इकोनॉमिक साइंसेस, ठीक है. द नोबेल असेंबली फॉर कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट गिव्स इट फॉर फिजियोलॉजी. आप फिजियोलॉजी को मेडिसिन भी बोलते हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर, राइट. सो इसके लिए दिया जाता है बाय कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट. टॉकिंग अबाउट द स्वीडिश अकेडमी, इट गिव्स इट फॉर लिटरेचर, ठीक है. लिटरेचर के लिए कौन देता है? स्वीडिश अकेडमी देती है. एंड जो नॉर्वेगियन नोबेल कमिटी है, इट गिव्स इट फॉर पीस. सो ये आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. नाउ मूविंग ऑन टू द 2020 अवार्ड्स. इमैनुअल शार्पेंटियर, शी गॉट इट फॉर केमिस्ट्री अलॉन्ग विद जेनिफर ए डोना. एंड इन्हें किस चीज़ के लिए मिला है? बिकॉज दे हैव एक्चुअली डेवलप्ड अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग. तो जीनोम एडिटिंग की इन्होंने मेथड डेवलप किया है, बिकॉज ऑफ विच दे हैव गॉट इट फॉर केमिस्ट्री. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मेडिसिन का मिला है हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉगटन एंड चार्ल्स एम राइस को. आप इन्हें याद कर सकते हैं बाय न्यूमोनिक्स, जैसे ऑल्टर किया राइस को माइकल ने, लाइक बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स आप अपने जो पर्सनलाइज तरीके से याद कर सकते हैं, जिससे आपके दिमाग में चीज़ अच्छे से याद रहे, ठीक है. सो मेडिसिन के लिए मिला है हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉगटन एंड चार्ल्स एम राइस. एंड इनको किस लिए मिला है? बिकॉज दे हैव एक्चुअली डिस्कवर्ड द हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पीस. पीस के लिए मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, और उसका जो मेन एजेंडा रहा है, उनका जो मेन एफर्ट्स रहे हैं, दैट हैज बीन रिलेटेड टू कॉम्बैटिंग हंगर. हंगर कहाँ पे? जैसे कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज. यू नो दैट देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, एंड
People are suffering from poverty and therefore of course they are combating hunger there. There are other nations also, जो African कुछ nations है, Asian nations है, जो बहुत ज़्यादा poverty में हैं and because of which hunger is very much prevalent there. तो World Food Program का जो main काम है that is to combat hunger, तो इनको इसके लिए Peace Prize मिला है 2020 का. The next one is literature. Literature के लिए मिला है Louis Glacko. Coming to the next one, that is economics. Economics के लिए मिला है Paul R. Milgrom Robert along with B. Wilson. इनको जिस चीज़ के लिए मिला है that is कि इन्होंने improvement show करी है in auction theory. जो auction theory है उसमें इन्होंने कुछ improvement show करी है, उसके साथ साथ कुछ नई auction format को भी invent किया है. ठीक है, so main चीज़ जो आपको याद रखनी है that is इन्होंने जो काम किया that is related to auction. ठीक है, moving to the next one, that is physics. Physics के लिए मिला है Roger Penrose, Reinhard Genzel, Andrea Ghez. ठीक है, इनको मिला है फिजिक्स के लिए. और जिस चीज के लिए इन्हें मिला है दैट इज डिस्कवरी ऑफ अ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी. सो गैलेक्सी के बीच में देयर इज अ सुपर मैसिव बट अ कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, और इसको इन्होंने डिस्कवर किया है एंड दैट इज व्हाई दे हैव गॉट द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 2020. ठीक है, टॉकिंग अबाउट इंडियन नोबेल लॉरेट्स. सो फर्स्ट कौन थे इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है? इट इज रविंद्रनाथ टैगोर इन 1913. उन्हें किसके लिए मिला था? लिटरेचर के लिए मिला था. ठीक है, देन वी टॉक अबाउट 1930 तो सीवी रमन को मिला है और इनको किसके लिए मिला है? फिजिक्स के लिए मिला है. और फिजिक्स में भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के रिगार्डिंग मिला है. ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और उस इफेक्ट को आपको पता होगा रमन इफेक्ट भी बोला जाता है इफ यू नो, अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो. नाउ 1998 में अमर्त्य सेन को मिला है और वो किसके लिए मिला है? उनको इकोनॉमिक्स के लिए मिला है. फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 2007 राजेंद्र के पचौरी को मिला है और वो किस चीज के लिए मिला है? पीस के लिए मिला है उन्हें. ठीक है, एंड दिस वाज बेसिकली अबाउट डिसेमिनेटिंग नॉलेज अबाउट क्लाइमेट चेंज. तो ध्यान रखना है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी बिकॉज ऑफ विच ही गॉट दिस पीस प्राइज. 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला है एंड ही ऑल्सो गॉट इट फॉर पीस. तो अगर उन्हें पीस के लिए मिला है तो बेसिकली इस चीज के लिए मिला है दैट ही हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन, या फिर जो भी यंग पीपल है जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है उनके राइट के लिए उन्होंने काफी फाइट किया है. सो फॉर दैट कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल प्राइज पीस के लिए मिला है. नाउ विल सी दैट देयर हैव बीन सर्टेन ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जिनको नोबेल प्राइज मिला है. अगर बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज हरगोबिंद खुराना, उनको मिला है 1968 में. द सेकेंड वन इज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनको मिला है 1983 में. और 2009 में वेंकटरामन रामकृष्णन को मिला है एंड 2019 दैट इज वेरी वेरी रीसेंट अभिजीत बैनर्जी को मिला है. अब हम बात करेंगे दैट व्हाई दे गॉट दिस अवार्ड. ओके, सो हरगोविंद खुराना को मिला है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए. ठीक है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए मिला है. किस चीज के लिए मिला है? एक्चुअली ही हैज इंटरप्रेटेड जेनेटिक कोड और उसका फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, तो जेनेटिक कोड का क्या काम है प्रोटीन सिंथेसिस में, उसको फाइंड आउट किसने किया है? हरगोविंद खुराना ने किया है. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन दैट इज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको मिला है फिजिक्स के लिए. फिजिक्स में जो है ही हैज एक्चुअली स्टडीड अबाउट द फिजिकल प्रोसेसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स. तो दैट इज व्हाई ही हैज गॉट दिस फॉर फिजिक्स. अभी अगर हम बात करें तो ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं, ये भी यूके और ये थे यूएसए में जब इनको प्राइज मिला था. सो दिस वाज द प्लेस देयर वेयर दे वर रिसाइडिंग एंड दे वर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. द नेक्स्ट वन दैट इज 2009 में जो मिला है दैट वाज फॉर केमिस्ट्री. और केमिस्ट्री में इन्हें किस लिए मिला है? एक्चुअली ही वाज एबल टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम. ठीक है, तो इनको मिला है राइबोसोम के लिए. द नेक्स्ट वन इज अभिजीत बैनर्जी, इनको मिला है टू एलिवेट ग्लोबल पॉवर्टी. ठीक है, इनको इकोनॉमिक्स के लिए मिला है एंड वी नीड टू रिमेंबर कि इनका जो मेन एजेंडा था दैट वाज पॉवर्टी से एलिवेट कराना, कैसे ग्लोबल पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है, दैट वाज अ थिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज बॉर्न इन इंडिया या फिर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. सो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वन दैट इज 1902 रोनाल्ड रॉस को मिला है और ये मिला है इन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए. और इनका जो मेन काम था दैट वाज इन मलेरिया रिगार्डिंग इन्होंने कुछ फाइंड आउट किया था. व्हेन वी टॉक अबाउट हिम तो ये यूके के सिटीजन है लेकिन ये ही वाज बॉर्न इन अल्मोड़ा. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज 1907 रुडयार्ड किपलिंग को मिला है एंड ही हैज गॉट इट फॉर लिटरेचर. ठीक है, अब इनकी जो बुक्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. बुक्स आप पढ़ेंगे कि रुडयार्ड किपलिंग जो है उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं. और ये इफ़ यू टॉक अबाउट हिम तो ये यूके के सिटीजन हैं एंड ही वाज बॉर्न इन बॉम्बे. फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज 1979 मदर टेरेसा को मिला है. आप सब जानते हैं उन्हें पीस के लिए मिला है और शी वाज एक्चुअली बॉर्न इन ऑटोमन एम्पायर बट शी वाज रिजाइडिंग इन इंडिया व्हेन शी गॉट इट. ठीक है, सो शी वाज रेजिडेंट ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम.
1989 दैट इज 14th दलाई लामा को मिला है। दलाई लामा आप जानते हैं कौन है, और उनका 14th मतलब ही इज एक्चुअली द 14th दलाई लामा। तो इनको मिला है पीस के लिए, और ही वॉज एक्चुअली बोर्न इन तिब्बत, बट वेन ही गॉट दिस अवार्ड ही वॉज रिजाइडिंग इन इंडिया, तो ही वॉज रेजिडेंट ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट एंड time. So this is all you need to remember about Nobel Prizes. Now moving on to the appointments. The first one is Joseph Robinette Biden Jr. ठीक है, हम इन्हें जॉ बीडन भी बोलते हैं। ठीक है, सो ही इज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये याद रखना जरूरी है कि कौन से प्रेसिडेंट है। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन है, ये चीज़ भी आपको देख लेनी है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार इलेक्शन ईयर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। सो यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दिस। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कमला हैरिस। शी हैज बिकम द 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड शी इज द फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि आप 46th और 49th याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एग्जाम में। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा। सो शी इज माइया सैंडू। ठीक है, इनका नाम याद रखना है आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, राजीव कुमार जो है, ही इज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नाउ। ठीक है, एंड रिसेंटली एज यू नो दैट जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है, हिज हेल्थ वॉज नॉट गुड. That's why he, on the basis of his health condition, now there is a new prime minister that has been selected. The name for the same is Yoshihide Suga. So they can ask that who is the prime minister of Japan. So you should have an idea. The answer for the same is Yoshihide Suga. ठीक है? So with this, आपका second part जो है CAT current affairs का that ends. ठीक है? अब मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आती रहूंगी रेगुलर बेसिस पे फॉर IFCAT एग्जामिनेशन. Till then, make sure that you're revising properly and keeping a major focus towards the areas that are very much predictable. That is your mathematics and reasoning. Maths and reasoning की already हम 2 वीडियोस डाल चुके हैं. Please go on to them. परसेंटेज की एक वीडियो है और एक रीजनिंग की वीडियो है, उनको अच्छे से देखना. यू विल गेट अ गुड आइडिया दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर IFCAT एग्जामिनेशन. व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड रिलेटेड टू दोज टॉपिक्स. ओके, so all the best guys, keep working hard and make sure that you like the video and also subscribe if you haven't already. Also comment down all the answers that I have asked you in due course of video.